ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਭਾਲ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੇਦੀਐ, ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਉ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਖਰਚੈ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜਗਤ ਧਨਹੀਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਖਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ, ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਆ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਭਗਤ ਥਾਏ ਪਾਹੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਲਾਹਿਓ ਹਰ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 548 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 556 ਅੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੈ। 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 33 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ 64 ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਰੋਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਭਲਿਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਥੈਂ ਸੁਖ ਨਾ ਭਾਲ। ਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਭਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਥੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
वो मन की शांति वास्ते, मन की इकाग्रता वास्ते हरेक थां ते भज्जिया फिरदा है। हुण तो लोग मोटिवेशन के लैक्चर भी लाउंदे ने जी। तुसी देखो बड़े बड़े महंगे लैक्चर लाए जाते हैं कि मेरे मन नूं जिहड़ी वो टिका, मन नूं शांति किवें मिले। पर सतगुरां दी बाणी ने बड़ा वधिया सानूं समझाया। कहन लगे जे तू मन नूं सुख लेना है तो वो परमात्मा की सिफत कर ला। जिहड़ा परमात्मा की सिफत सलौकता करदा है उन्हां दे मन दे विच हमेशा ही खुशी, उन्हां दे मन दे विच हमेशा ही खेड़ा बनिया रहिंदा है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। जिहड़े उहदे भगत ने, जिहड़े उहदे प्यारे ने, जदों वो बाणी दे नाल सिमरन दे नाल जुड़दे ने असली सुख दे नाल, उन्हां दे अंदर फिर एक जिहड़ा नाम दा सुख, नाम दा आनंद है। तो याद रखियो जिहड़ा गुरु की सेवा तो सुख मिल गया ना, वो सुख तुहानूं बाहर किते नहीं मिलेगा। मैनूं इत्थे एक गुरु काल की घटना याद आ गई। औरंगजेब ने अपने दरबार दे विच कुछ कुरान दीयां आयतां सामने पेश कीतियां। कहन लगा अपने जिन्ने भी काजी ने, मुल्ला मुलाने ने, विद्वान ने इस्लाम मत दे, सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के कहन लगा कि आ आयतां ने तुसी इहदे अर्थ मैनू चंगी तरह समझा दिओ। मैनू अजे तक पूर्ण तौर पर तसल्ली नहीं हुई, अंदर नूं ठंडक नहीं पई। उन्हां विचारिਆਂ ने अपने अपनी वाह पेश लाई, वो कुरान दीयां आयतां दे अर्थ करन दा यतन कीता, पर औरंगजेब दी जिहड़ी वो तसल्ली ना हुई। इत्थे ही बहादुर शाह मौजूद है। वो कहन लगा पिता जी जे तुसी मैनू हुक्म करो मैं अपने उस्ताद दे कोलों अर्थ करवा के लियावां। जदों उस्ताद दे कोलों अर्थ करवाए गए तो जिहड़े बहादुर शाह दे उस्ताद ने अर्थ कीते, इनू पढ़ के औरंगजेब दंग रह गया। कहन लगा दस तेरा उस्ताद कौन है? उहदा नाम सी सत्कारयोग भाई नंद लाल जी। कहन लगा बहादुर शाह कहंदा पिता जी मेरे उस्ताद का नाम है नंद लाल। कहंदा विद्वान होवे ते हिंदू मत दे विच होवे मैनू बिल्कुल परवाह नहीं। कहन लगा इदां करो इहदे उस्ताद नूं जां ते इस्लाम दे विच उहनूं कह भी आ जा इस्लाम कबूल कर ला, नहीं तो मौत दे घाट उतार दिओ। बहादुर शाह शशो पंजे च पै गया भी यह चंगा फल मिलिया है। जाके भाई नंद लाल नूं कहन लगा उस्ताद जी गड़बड़ हो गई है। जिहड़े तुसी आयत दे अर्थ कीते ने वो मेरे पिता नूं पसंद बड़े आए ने, पर उहदी समस्या ये है वो चाहुंदा है कि जिहड़ा ये विद्वान है ये इस्लाम दे विच होना चाहिए, हिंदू मत दे विच नहीं। इस करके जां तुसी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मौत दे घाट उतार दिते जाओगे। मैं मौका देना भज सकदे ते भज लो। भाई नंद लाल जी ये जो बड़े हैरान होए, कहंदे भी तुहाडी कुरान होवे, तुहाडी कुरान दे अर्थ करां ते मैनू फल की मिलदा है, मैं कित्थे जावां? ते बहादुर शाह ने एक गल कही सी, कहन लगा उस्ताद जी हर एक राजा भावें छोटा ते भावें वड्डा है, मेरे प्यो दे अगे कुसकदा नहीं, उहदा दबका हर कोई झलदा है। केवल ते केवल गुरु नानक दा घर इहो जिहा है जिहदे उत्ते जिहड़ा है मेरे प्यो का दबका भी नहीं चलता। जे तुसी जाना है तो गुरु नानक दे घर चले जाओ। कुछ विद्वान लिखते हैं भाई नंद लाल दे वड्डे वडेरे गुरु काल दे नाल किते ना किते अटैच ने, जुड़ते आ रहे ने। गल मुकदी करां कि भाई नंद लाल जी भज के ते गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों च आए। पता लगा कि भाई नंद लाल एडा जिहड़ा विद्वान आया है, तो सतगुरुआं ने कहा इन्हां नूं जिहड़ा वो गुरु घर के भांडियां की सेवा ते ला दिओ। भाई नंद लाल ने सेवा की ते याद रखियो ये वेखण नूं कालख जापदी सी, पर ज्यों ज्यों भाई नंद लाल जी ने उस कालख दे नाल स्वाह दे नाल भांडियां नूं मांजिया, भांडे ते साफ की होने सी, भाई नंद लाल दा अंदर साफ हो गया, अंदर नाम दा रंग चढ़न लगा। वो भाई नंद लाल वो विद्वान जिहड़ा हर पासे जिहदियां धुम्मां सन विदवता दियां, अज उन्हें कलम चुकी ते अज उन्हें जिहड़ा सी कुछ शेर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की सिफत दे विच लिखे, लिख के उन्होंने नाम दिता बंदगी नामा, ते सतगुरां दे चरनां दे विच एक दिन दीवान दे विच पेश कीते। सतगुरां ने पढ़े
पढ़ के बड़े खुश होए तो कलम चुकी उन्होंने नाम जिहड़ा सी जिंदगी नामा दे दिता। कहन लगे नंद लाल बेटा गल याद रखी, जिहड़ा तेरे बचनां नूं पढ़ेगा उन्होंने जिंदगी जीउण दे असली असूलों का पता लगेगा। आखिर भाई नंद लाल नूं गुरु घर दे विचों मान मिलिया, सत्कार मिलिया, प्रभता मिली, हर एक दात मिली जिहड़ी मैं गल अज ते टिकाउणी चाहुंदा। भाई नंद लाल एक गल याद रखियो, विद्वान होण दे नाल नाल गुरु घर की सेवा नहीं सी छड्डदे ते 10वें पातशाह बड़ा प्यार करते सन, उन्हां नूं प्यार दे नाल लाल जी कहिंदे सन। ते भाई नंद लाल जी एक दिन जिहड़े वो बर्तनां की सेवा करते पे ने, पुराने समय च भांडे सुआह ना मांजने, सारा बंदा काला पीला हो जाता, सारे वड्डे पतीले जो मांजने देगा। बहादुर शाह आया, उन्हें वेख्या भी मेरा उस्ताद ते भांडियां दे विच, आन के हंकार भरे बोल लगा, कहन लगा उस्ताद जी तुसी मेरे प्यो तो बच के ते इत्थे आ गए, इत्थे आन के तुहानू मिलिया कि साडे कोल रहिंदे सो कीमती पोशाकां मिलदियां सन, इत्थे ते सादा जिहा कुर्ता पाया होया है तुसी। साडे कोल रहिंदे सो कीमती खाने सन, इत्थे सादा प्रशादा है। साडे कोल रहिंदे सो ते हरेक सुख सहूलत सी, इत्थे सिर तो लैके सवाह तक नाल पैरां तक भरे पए जे। ते भाई नंद लाल ने जवाब बड़ा सोहना दिता सी। कहन लगे बहादुर शाह याद रखी, ये सुवाह ने, ये गुरु घर का केसर, ये गुरु घर की रहमत है, ये गुरु के चरणों का प्यार है। तो बहादुर शाह फिर बोलिया, कहन लगा उस्ताद जी तुहानू कीमती खाने चेते नहीं आउंदे जदों इत्थे लंगर दीयां सुक्कीआं रोटियां खांदे जे, सुवाह दे नाल जदों लिबड़े जे ते वो तुहानू कीमती महल माड़ियां दे सुख सहूलतां चेते नहीं आउंदियां। भाई नंद लाल ने कहा मैनू कुछ नहीं चेता आउंदा, जदों गुरु के चरणों के नाल जुड़दा उहदी प्रीत ही इन्नी है कि तुहाडा राज भाग फिक्का पै जांदा। बहादुर शाह ने पुछया, कहन लगा उस्ताद जी मैनू ये गल दसो, इहो जिहा तुहानू गुरु गोबिंद सिंह ने की दे दिता जिहदे कारण तुहानू जिहड़ा है वो साडे कीमती खाने, कीमती पोशाकां, सुख सहूलतां सारियां फिक्कियां लगन लग पईयां। भाई नंद लाल ने कहा गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने चरणों का निग दे दिता है, अपनी गोद दिती, मैनू अपना बना लिया। बहादुर शाह याद कर समा तुहाडी कुरान सी, उहदे ही अर्थ कीते सन, मैनू उहदा फल मिलिया सी, मौत दे घाट उतार दिता जावांगा जां मैं इस्लाम कबूल करां, इत्थे मैं आवां अपनी कलम चुक के ते बंदगी नामा लिखा, गुरु त्रुट के सीने दे नाल ला के ते उहनूं जिंदगी नामा कह के मैनू इन्ना प्यार सत्कार दे देवे। ये फर्क है तेरे प्यो दे विच ते गुरु कलगीधर धर दे चरनां दे विच। तेरे प्यो दे कोल इन्ना चिर रहा, उत्थे अखीर ते मौत मिली है, गुरु कलगीधर दे चरनां च आया, इत्थे मरदे होए नूं नवां जीवन मिलिया। आ गुरु दी सेवा दे विचों निकलदा। याद रखियो भाई नंद लाल एक बार गुरु साहब के चरणों के भौरे बन गए, बाद च गए नहीं। उन्हां दी रचना भावें फारसी दे विच है, कुछ विद्वान जिहड़े साडे उस चीज़ नूं कोट करते हैं, पर एक गल याद रखियो भाई नंद लाल ने गुरमत के फलसफे नूं जिहड़ा है वो बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल निखार के जिहड़ा सी सामने रखिया। मैं पिछले समय च एक बार बेनती की सी कि अज साडे जिहड़े प्रचारक ने वो मेहनत नहीं करते। भाई साहब बैठे ने फारसी के माहर ने, याद रखियो फारसी नूं पढ़ना तो इनू समझना बड़ा औखा काम है। एक प्रचारक कुछ जिहड़ियां ने वो गज़लां चेते कर लवे, उन्होंने मिलता की है, सच्ची गल है ना, वो विदवता का उन्होंने मुल नहीं पैंदा। अज जदों प्रचारक कोई शुरुआत करता है ना, तो याद रखियो सानू कालजां दे विच ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। भाई गुरदास जी पढ़ाए जाते हैं, भाई नंद लाल जी पढ़ाए जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ाई जाती है, कुछ दसम ग्रंथ दीयां बाणियां पढ़ाईयां जांदियां ने, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ पढ़ाया जाता है, होर ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। बच्चा मेहनत करदा मर जाता है। जिदन स्टेज ते चढ़ते हैं तो ये दुख दे नाल कहना पैंदा, जदों उहदा मुल नहीं पैंदा फिर पढ़न नूं किसी दा चित्त नहीं करता। अज ये दुखांत है जो भाई नंद लाल जी लेके दे के असी कौम जिहड़े दे विच उस चीज़ नूं नशर ना कीता, कौम दी झोली च ना पाया,
जिथे साडे उत्थे प्रचारकां दा कसूर है, उहदे तो कई गुना वध साडे प्रबंधकां दा कसूर है। जिहड़े प्रचारकां ने इन्हां चीज़ां नूं कोट कीता, उन्हां ने उन्हां चीज़ां दा मुੱਲ ही ना पाया। वो मुੱਲ नहीं पाउंदे। मैनूं पता है, जो मैं फील्ड दे विच विचर जा, जो कथा की गल आउंदी है, एक उदाहरण दवा, खोता घोड़ा सारा इकट्ठा कर देंदे ने जी। उत्थे कोई मुੱਲ नहीं पाया जाता विदवता का, भी कोई मनुख नवीं मेहनत करके कुछ वखरा पेश कर रहा है। ये कारण सच्ची गल है, औखा काम कौन करता है? अज प्रचारक इन्हां चीज़ों नूं छड्डदे जा रहे हैं। पर याद रखियो, लोड़ है इन्हां इहो जिहे गुरसिखां दे जीवन ते इन्हां दीयां रचनावां नूं नाल लैके चलण दी। भाई गुरदास जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल करते हैं, उन्हां दी बाणी नूं, उन्हां दी रचना नूं जिहड़ी है वो कुंजी क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की कुंजी कह के सत्कारिया है। तो याद रखियो, 10वें पातशाह के जीवन दीयां झलकां भाई नंद लाल ने दित्तियां होईयां। खैर, अज दा साडा प्रबंधकी ढांचा केवल तो केवल विखावे मात्र रह गया। सानू इन्ना फिक्र ही नहीं कि साडा लिटरेचर किधर नूं जा रहा। ये एक वखरा पक्ष लै लिया। मैं विचार वाल आवां, जिहड़ी बेनती कर रहा सा कि गुरु घर की सेवा की भाई नंद लाल ने बहादुर शाह नूं जवाब दिता। कहन लगे, जदों तेरे प्यो दे कोल सा उदों मौत मिली, जदों कलगीधर दे चरनां च आया तो इत्थे सेवा दे विचों जीवन निकलदा है। ओह गल गुरु अमरदास जी बख्शिश करते हैं। कह लगे, गुर सेवा ते सुख पाई है। ये मैं तां साखी तुहाडे नाल सांझी कीती। पैसिਆਂ ਦਾ सुख भाई नंद लाल नूं औरंगजेब दे कोल बड़ा सी, पर वो आत्मा नूं सुख नहीं सी जिहड़ा गुरु कलगीधर दे चरनां दे विचों निकलिया। तो मैं अक्सर बचन पढ़दा ना कि सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश भरमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। हर एक चीज़ की दुनियावी तौर पर लोड़ है, पर सच्ची गल है, जिहड़ा नाम का रस है, जिहड़ा सेवा दे विचों सुख निकलदा है, जिहड़ा बंदगी दे विचों निकलदा है ना, वो होर किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। असी सफाई वाले बंदे लाउने आ, घर होवे, साडा होटल होवे किते, ਜਾਂ कोई फंक्शन प्रोग्राम होवे, बंदा 2-4 घंटे लगातार काम करे तो शरीर थकावट महसूस करता। शरीर थकावट दे नाल भर जाता है। जिहड़े रोजाना दा सफाई का काम करते हैं, तुसीं देखना कई बारी उन्होंने नशा लैना पैंदा है, पर गुरु घर की इन्नी क वडियाई है, लोग 12-12 घंटे भांडे मांज के भी तरो ताज़ा रहिंदे ने। तुसीं दरबार साहिब जाओ, सवेरे 8 बजे नाल प्रशादा शुरू हो जाता है जी, तो ज्यों उत्थे भांडियां की सेवा चलती है, रात 11 बजे तक फुल संगत होंदी है। जिदन गुरपुरब 12-1 बजे तक होंदी है, तो रात प्रशादा चलता रहिंदा है। ये तुसीं 4 बजे तक तुहानूं प्रशादा मिलेगा दरबार साहिब दे विच, उस तो बाद चाह चल पैंदी है। तो याद रखियो, उत्थे जिन्नी फिजिकल साडा वर्क हुंदा है, जिन्ना जोर लगता है, सेवा करके इन्ना महसूस ही नहीं होया कि इन्ना जोर कित्थे लग गया, पता ही नहीं लगता, बंदा फिर तरो ताज़ा रह जाता। बड़ा औखा काम है। ये मैं तां कुछ उदाहरण देना, गुरु साहब की कृपा दे नाल ये करके वेखिया होया, प्रैक्टिकल चीज़ां ने मेरियां। इस करके याद रखियो, सेवा दे विचों सिख निकलदा, सेवा चों कदी थकावट नहीं निकलदी। मेरे को इहो जिहियां बेअंत उदाहरणां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, तेरे हौमे नूं पट्ठे पै जाणगे, गुरु का दर छड्ड के किते होर जावेगा। अज तो समस्या है ना, ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੇਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ,
सेवा करनी है। मैं एक दो उदाहरण दे देना। अक्सर असी पंक्ति पढ़ते हैं कि सतगुर की सेवा सफल है, इन्नी तो गल कह दी जो सेवा करते हैं, पर अगे कंडीशन लगी हुई है, सेवा सफल है पर कदों, जे को करे चित लाए। चित कित्थे है तेरा सेवा वेले, ये गल जरूर कोट की जाएगी। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। दूसरा बचन पढ़ते हैं, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जित सतगुर का मन मन्निया तो पाप कसमल भन्ने। तेरी सेवा दे उत्ते जे किते गुरु खुश हो गया तो याद रखी करोड़ां जन्मां दे तेरे पाप खत्म हो जाणगे। आ सेवा दे विचों जीवन निकलदा है। ते सेवा दे विचों मैनूं याद है जिस दिन आसा दी वार दी गल चली सी, मैं अर्ज कीती सी सेवा दे विचों करैक्टर निकलदा, सेव कीती संतोखी। जिनी सच्चो सच ध्याया उन्नी मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीशी अगला नित देवै चढ़े सवाया। की गल कित्थों होई शुरू सेवा तो, पर समाप्ति कित्थे होई वडियाई वड्डा पाया। गुरु की सेवा करदा करदा जो रसना नाल गुरु गुरु जपिया तो सतगुरु गुरु नानक साहब उत्थे कहिंदे तू वडियाई करदा करदा उस वड्डे नूं पालिया। आ सेवा दे विचों निकलदा। एक उदाहरण होर दे देना। एक गुरु अर्जुन साहब का बचन है। देखो ये दो तरह की सेवा है, एक कामना सहित है, एक कामना रहत है। कई बारी मनुख कामना लैके सेवा करता है, चलो ठीक है, ये भी गल किते ना किते प्रवान है। साडे मन च कोई इच्छा होवे ते दाता तो गुरु कोलों लैनी है ना। मैं इदां बिल्कुल नहीं कहता भी नहीं जी इत्थों कुछ मंगो ना, जो बाणी ने सारा कुछ मंगया है, मान मांगो तान लक्ष्मी सुत दे, असी दात इत्थों मंगनी है। मनुख कई बारी सेवा करता है तो सेवा दे नाल वो दात झोली च पै जाती है। वैसे तो है ये सौदेबाजी, पर ये एक सच्चाई है। मैं बड़िया चीज़ां हत्थां ते सरों जमाउण वाली गल अखी वेखियां होईयां ने। जो इच्छा लैके कोई सेवा करता है, मालक उहदी सेवा नूं फल लाउंदा, इच्छा पूरी हुंदी है। पर जदों तुसीं इच्छा तो उपर उठदे जे, इच्छा तो रहत हो के सेवा करदे जे, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती, गुरु अर्जन साहब कहते तेनों परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। आ सेवा चों निकलना। सेवा करत सुखमनी साहब, सेवा करत होए नेह कामी की मिलया जी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये सेवा का जीवन है। सतगुरु कह लगे गुर सेवा ते सुख पाई है, होर थैं सुख ना भाल। अगे कह लगे गुर कै शब्द मन भेदी है। भेदी का अर्थ है जी विन्या जाना, परो देना चंगी तरह। हुण एक तो इदां ना भी आपां मूँह दे उत्तों शब्द बोली गए, अंदर नहीं जुड़िया। सतगुरु कहते नहीं, चंगी तरह परो दे उन्होंने, जिवें हार परोया जाता है ना, इदां अपने मन नूं जिहड़ा शब्द दे नाल चंगी तरह परो दे, एक मिक हो जे। गुर कै शब्द मन भेदी है। जिस दिन मन शब्द दे विच परोया गया, तन सेवा दे विच होया, याद रखी उस दिन तू कल्ला नहीं होवेगा, सदा वसै हर नाल। उस दिन तो परमात्मा तेरे अंग संग वसेगा। परमात्मा किते बाहर नहीं। परमात्मा बारे आपो अपने विचार ने ना। कोई कहता सतवें आसमान ते रहिंदा, कोई उन्होंने मंदिरां च लभदा फिरदा है। अज दुखांत है, मैनूं माफ़ करना, सिख भी रब नूं गुरद्वारियां चों लभदा है। रब गुरद्वारियां च नहीं, रब तेरे अंदर बैठा होया है। गुरद्वारे ये एक सिक्खी दे स्कूल ने, इत्थों आके सिखना सी तूं। तुसीं स्कूल च जाओ, उहदे बाहर बाहर कुछ गल्लां लिखियां होंदियां ने बड़ियां चंगियां। उन्हां चों एक लाइन लिखी हुंदी है कि सेवा सीखण लई आओ, सेवा लई जाओ। ये गुरद्वारा है। ये तो मैनूं एक गल चेते आ गई, चलो इस श्लोक की व्याख्या करके समाप्ति करना। अज कई बारी जी असीं इहनूं गुरु घर कहने आ, पर यह गुरु घर नहीं, मैनूं माफ़ करियो। शब्द है गुरद्वारा, द्वारे का अर्थ होंदा द्वार, एंट्री गेट। गुरु ग्रंथ साहब ने गुरद्वारा शब्द वरत्या। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे तोए हच्छा होए सी। भांडा अच्छा सोए वाली जिहड़ा शब्द है। असी कहने गुरु घर है, नहीं साडा घर किहड़ा है? निज घर महल पावो सुख सहजे। साडा घर परमात्मा के चरण ने। गुरु का द्वारा है, गुरु के राही असी घर, जिवें फिर समझा देवां, द्वारे का अर्थ दरवाजा। दरवाजे च किसी नूं सौंदियां देखिया तुसीं, बहिंदियां देखिया, रोटी पानी खांदे वेखिया? नहीं। द्वारा केवल तो केवल एंट्री है।
तुसी आउणा है तां भी दुआरे राही आउणा है, तुसी जाना है तां भी दुआरे राही जाना है। मंजिल साडी घर है, गुरु एक द्वारा है। जदों असी परमात्मा तक पहुँचना है तेनू गुरु द्वारा आउणा पवेगा, पर तू पहुँचना कित्थे है? परमात्मा दे घर दे विच। असीं पढ़दे नहीं 2 बार कि सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्ब संभाले। वो पता नहीं किहो जिहा तेरा दर है जिथे सारियां दी साम संभाल कीती जाती है, पर उन्होंने जिहड़ा रस्ता है वो गुरु द्वारे तो जाता है। इस करके कितना चंगा होवे इस शब्द नूं दुरुस्त करके असीं गुरद्वारा शब्द कहिए बजाए गुरु घर दे। अज गुरु घर कहन लग पे, पर यह असल च गुरद्वारा सी। इत्थों परमात्मा दे घर दा द्वारा शुरू हुंदा है। पर हाँ ये गल याद रखियो, इत्थे आउणा है, इत्थे सेवा सीखनी है, सिमरन सीखना है, गुरमत दीयां गल्लां सीखणियां ने। पर इस गल का भुलेखा नहीं रखना कि रब शायद कल्ला गुरद्वारे दे विच, मैं कल्ला शब्द वरतिया नाल, कल्ला गुरद्वारे दे विच है नहीं। बाणी कहती है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। ये नहीं तू इत्थे आण के अरदास कीती तोरी इत्थे ही वो रखिया करेगा। तेनू जिथे भी लोड़ पैंदी है, तू चंगे थां दे उत्ते गया, उत्थे लोड़ पै गई उत्थे अरदास कर। मुसीबत पै गई हस्पताल च पहुँच गया, उत्थे अरदास कर, परमात्मा उत्थे भी मदद करेगा। क्योंकि बाणी कहती है गुर मेरे संग सदा है नाले, वो हमेशा अंग संग रहिंदा है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं गुर कै शब्द मन भेदी है। जिदन तेरा मन विन्निया गया ना शब्द दे नाल, याद रखी सदा वसै हर नाल, उस दिन वो परमात्मा हमेशा ही तेरे अंग संग सदा तेरे नाल वसेगा। कह लगे नानक नाम तिन्ना को मिले, कहते परमात्मा उन्होंने मिलता है, परमात्मा का नाम उन्होंने मिलता है। हुण जुबान तो सारे गुरु गुरु जपी जाते हैं। हथी सेवा करने वाले बड़े लोग तुहानू मिल गए जिहड़े केवल तो केवल हत्थां दे नाल सेवा करनगे। मैं फिर बेनती करा, जे सेवा करदे सुरत नहीं टिकी, जे सिमरन करदे सुरत नहीं टिकी तो गल नहीं बनेगी, अंदर की खेड नहीं बनेगी। जिथे झोलियां भरदियां नूं कुछ समा लगता है, कई एहो जे जीव भी मेरे वर्गे नभागे होंदे ने, कई कई साल कढ़ देंदे ने, फिर खाली दे खाली रह जाते हैं। सतगुरु कह लगे नानक नाम तिन्ना को मिले, ये नाम की दात उन्हां दियां झोलियां च पवेगी। किन्ना दे? जिन हर वेखै नदर निहाल, जिन्हां नूं परमात्मा मेहर की नज़र दे नाल देखदा है, जिन्हां ते वो मेहर की कृपा की दृष्टि पाउंदा है ना, उन्हां दी झोली दे विच नाम की दात पैंदी है। नहीं तो जे तुसी सेवा सिमरन नूं केवल तो केवल फिजिकल वर्क देखोगे तो बड़े बड़े लंबे समय निकल जाते हैं सेवा करदियां। माफ़ करना, ना सेवा करदियां अंदर तब्दील हुंदा है, ना सिमरन करदियां अंदर तब्दील हुंदा है। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं। तो मैं समाप्ति करा, सतगुरां दा बड़ा प्यारा बचन है कि सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावै हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया हर तिनका थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। तू गुरु की गल नूं सत करके मनेगा तो तेरी सेवा भी सफल है, तेरा सिमरन भी सफल है। सो सतगुरु बख्शिश करते हैं, ये नाम की दात उन्हां दियां झोलियां च पैंदी है। गल सेवा तो शुरू है, पर समाप्ति पहले श्लोक की नाम ते है। सेवा तो चलेगा गुरु दे नाल, रसना दे नाल गुरु गुरु जपी, पर उस झोली च पैना है जिस झोली दे विच परमात्मा ये नाम की दात पा दिंदा है। वो पैनी किवें है? कर्म कांड दे नाल के किहड़े तरीके दे नाल, ये अगले श्लोक की व्याख्या ये आपां कल नूं करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, ये पहली पौड़ी की पहले श्लोक की व्याख्या जी। दूसरा श्लोक तो पौड़ी आपां कल नूं वाचांगे। समय की समाप्ति होईयां भुलां गलतियां की खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। गुर कै शब्द मन भेदिए, सदा वसै हर नाल, नानक नाम तिना कौ मिलै, जिन हर वेखै नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु